today we've tried to use a new way of teaching you. I'm putting up a PowerPoint presentation which will make it more clear to you what I'm trying to say. Today we are in the second part of our class for forest conservation. तो हमने last time class खत्म करी थी, तो we were talking about mangrove forests and why they are ecologically so important in the forest chain. Today we are going to talk about forest conservation per se. I'll try and quote a few case studies for you. It's not important whether I can be seen or not, but if the PPT can be seen, please put it in the comment box so that I know that you are with me while I teach you. This becomes much more easier for me because sometimes I've been told that I teach a little fast, and also English is a bit of a problem for some of the students. So these notes are going to stay with you. They are going to be uploaded along with my video. So you can always go back to it whenever you require. Whenever we talk of forest conservation per se in India, we go back to the year 1973, where in the village of Chamoli district, in the Alaknanda Valley, we started what is called the Chipko movement. अब ये चिपको मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज विथ रिगार्ड टू द हैंडलिंग ऑफ एरिया ऑफ सम फॉरेस्ट टू अ प्राइवेट स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी कॉल्ड सिडमिन. ये सिडमिन कंपनी हमारे इलाहाबाद की ही थी. इनफैक्ट इसकी स्पेलिंग है साइमंस, SYMONDS. साइमंस कंपनी इलाहाबाद की थी, जो कि स्पोर्ट्स गुड्स के लिए पेड़ों को गिरा रही थी, मानी कि पेड़ों को काट रही थी. तब उसने 14 एश ट्रीज काटे थे, जिसके बाद की द चिपको मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय भट्ट एंड द दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल. I repeat, by Bhatt and the Sholi Gram Swaraj Mandal. Although the Chipko movement is associated widely with Sundarlal Bhaguna, who took over the movement in 1977. It is also associated with Gaura Devi who started off in 1971 from Rainy village, जहां की इन्होंने नोटिस किया कि लैंडस्लाइड उसी जगह से हुई है जहां से कि पेड़ काटे गए थे. If you recall, in the second lecture itself, I had told you about the Heidelberg project, which is also known as the Rishi Valley Heidelberg project, जो कि फ्लैश फ्लड में पूरा का पूरा बह गया था और उसकी वजह से अलकनंदा की पूरी वैली में फ्लैश फ्लड्स आए थे after a cloud burst in the same area. And we are talking about this area way back in 1971 to 73 and then 77. Why I want to mention the Chipko movement to you here is because it brought about a change in the Indian Forest Act of 1927 and culminated in what is now the Indian Forest Act of 1980. इसलिए आपको इसके बारे में बताने की जरूरत है. Again, you will be reading and I will be telling you about joint forest management programs. अब joint forest management programs का याद रखिएगा कि ये हर समय हमारे बफर या ट्रांजिट जोन में आते हैं. जो हमारे नेशनल फॉरेस्ट हैं या जो हमारी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके जो बफर और ट्रांजिट जोन में है, उसमें हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे. जब हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, सो योर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज absolutely restricted to your transit zone and your buffer zones in the area of reserved and protected forest. और जब हम सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, तब हम अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करेंगे या पंचायत फॉरेस्ट की बात करेंगे. अगर आपको याद हो तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, they are classified as protected forest or unclassified forest, and according to the constitution they are state forests and they are commercial forests and they are private forests. तो जब भी हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम हर समय ट्रांजिट और बफर जोन की बात करेंगे और हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे. और जब हम अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करेंगे या रूरल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, तब
हम बात करेंगे ऑफ अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. Having told you this, I will take you through the case studies as they come. अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में आपको बताने से पहले आई थिंक इट इज प्रॉपर दैट वी टॉक अबाउट द साइकिल्स थ्रू विच a forest gets regenerated, or what is the role of forest in all the cycles that we maintain in the biosphere. तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम की परिभाषा क्या थी? A self-regulated and self-sustaining structural and functional unit of the biosphere is called an ecosystem. I repeat, a self-regulating, self-sustaining, structural and functional unit of the biosphere is called the ecosystem. अब बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलके हमारे बायोस्फीयर को बनाते हैं. तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ्स टेरेस्ट्रियल सिस्टम. आई रिपीट, biosphere is that part of the Earth's terrestrial system which includes air, land and water, in which life develops and where life processes in turn get transformed. अगर इतनी लंबी डेफिनेशन समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ ये इतना याद कर लीजिए कि the interconnected network of all ecosystems constitutes the biosphere. मतलब आपके पास जितने इकोसिस्टम्स हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे, जब आप उनके इंटरकनेक्शन के साथ समझते हैं तो हम बायोस्फीयर की बात करते हैं. और अगर सिंपली पुट तो इट इज द लाइफ जोन ऑफ द अर्थ. इट इज द एरिया ऑन अर्थ वेयर लाइफ exists. So biosphere is that part of the Earth's terrestrial system जहां की एयर मतलब एटमॉस्फेयर, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, तीनों एक साथ मिलके लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं. बायोस्फीयर की परिभाषा समझने के लिए इसकी जरूरत है बिकॉज फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर for the sustenance of the biosphere and for the sustenance of biodiversity. अब इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या रोल होता है? आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो सिंपली इसको आप एक वाटर साइकिल के रूप में समझिए. अब वाटर साइकिल में क्या होता है? ये सिंपलेस्ट साइकिल है. इस साइकिल में देयर इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कहां से होता है? इवेपोरेशन आपका सी, ओशन, लेक, बाय ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रीज. इस तरह से आपकी सारी वाटर बॉडी से इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है. इवेपोरेशन कहां जाता है? अब इवेपोरेशन आपका हाइड्रोस्फीयर से हो रहा है और ये कहां जाता है? ये एटमॉस्फेयर में जाता है. जब एटमॉस्फेयर में ये पहुंचता है तो वहां पे कॉन्डेंसेशन होता है. कॉन्डेंसेशन होके ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बोथ लिथोस्फीयर में एज वेल एज हाइड्रोस्फीयर में वापस गिरता है. ये सिंपल सी साइकिल है. आप लिखते जाइए इवेपोरेशन और उसके बाद डालिए एक एरो, देन यू राइट condensation, then you write precipitation and precipitation is your rain and then you again make the full circle और evaporation फिर से हो जाता है. इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की इंपॉर्टेंस हमारे ब्लू प्लैनेट पर इसलिए है बिकॉज लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट वाटर. 70% of the Earth's planet is covered with water. 70% of the human body is made up of water. अब वाटर का रोल क्या होता है? वाटर इन द फर्स्ट प्लेस जब ये इवेपोरेट होता है तो ये अर्थ की सरफेस से सारी हीट ले लेता है. तो दिन में जो वाटर बॉडीज होती हैं वो बहुत हीट अप होती हैं. दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में वाटर कोई बहुत गर्म के उबलने नहीं लगता. It is able to sustain a stable temperature even after absorption of this heat. मतलब ये जितनी भी लिथोस्फीयर की हीट को सोख लेता है उस पर भी ये अपना टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में मेंटेन कर पाता है. ये तो हो गई दिन की बात.
रात में जब वाटर बॉडीज अपनी हीट लूज करती हैं, तो उस प्रक्रिया में ये अर्थ को उतना कोल्ड नहीं होने देती, जो कि अगर पानी ना होता तो इतना कोल्ड अर्थ का सरफेस हो जाता। इस वजह से जो हमारा डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम रहता है। और आप देखते हैं कि जैसी सिटीज हैं लाइक मुंबई, लाइक मद्रास, इनका डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होता है, इनका जो एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी कम होता है, और यहाँ क्लियर कट विंटर और समर मंथ्स नहीं होते। जबकि जो इंटीरियर्स हैं इंडिया के, जहां पे कि वाटर इफेक्ट मतलब सी का इफेक्ट नहीं पहुंच पाता, वहां पे आपको ग्रेट वेरिएशन बिटवीन विंटर एंड समर मंथ्स मिलता है। तो ये तो हो गए आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट वी गो टू व्हाट इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। अब हमारे अंदर सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में कार्बन मॉलिक्यूल किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब कार्बन हमारे पास एटमॉस्फेयर में एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हमारे लिथोस्फीयर में एज फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। और उसी प्रकार से ऑर्गेनिजम्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर in the presence of sunlight and water and convert it into starch। ये जो आपका स्टार्च कन्वर्जन है ये भी कार्बन होता है। तो ये कार्बन प्लांट के अंदर डिपॉजिट होता जाता है, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अब अगर आप फूड चेन में देखिए तो ये पौधे हर्बीवोर्स खाते हैं, हम भी खाते हैं, और अदरवाइज जो जानवर अपर साइड पे फूड चेन पे हैं वो उन हर्बीवोर्स को खाते हैं। So in some form or the other, the carbon then gets transferred from the atmosphere to the trees, from the trees to the organisms. इसके बाद जब ऑर्गेनिज्म डीके करता है या वो मर जाता है और सॉइल में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो भी वो कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डिपॉजिट्स आपको जो मिलते हैं in the Earth's lithosphere in the form of coal or petrol, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स जो आपको मिलते हैं ये वही कार्बन है जो कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में या प्लांट्स के डीके हो जाने के बाद जो लिथोस्फीयर में डिपॉजिट होते जाते हैं ईयर बाय ईयर, वो हमारी कार्बन डिपॉजिट को इंक्रीज करते हैं। अब कार्बन का क्या रोल है? Carbon dioxide in the atmosphere helps to maintain a warm temperature. Carbon is being added regularly through the process of first respiration, both by plants and animals when we take in oxygen and we give out carbon dioxide. Then when organisms die, whether it's plants or whether it's animals, when they die, they are then deposited in the soil in one form or the other in the form of carbon. The third is when we burn fossil fuels, we are adding carbon dioxide to the atmosphere. A certain amount of carbon dioxide in the atmosphere is a must because carbon जो है atmosphere को warm रखता है। पर जब हमारी quantity of carbon dioxide हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेयर सरफेस टेम्परेचर्स इंक्रीज। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब बढ़ती है? जब हम डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज forests are the ones which absorb the carbon dioxide and give out the oxygen. In this process, they maintain a stability. इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि जो अभी 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो ये है दैट वी नीड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन द इकोलॉजिकल सेटअप। मतलब जो हमारे पास हमको संपदा दी गई है या हमें विरासत में मिली है उसका इक्विलिब्रियम हमें मेंटेन करने की जरूरत है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल फॉरेस्ट का आता है। व्हेन यू रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर,
you reduce the amount of oxygen in the atmosphere, but simultaneously उसी के साथ साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पर्यावरण में बढ़ा रहे हैं। इसके बढ़ जाने से आपके सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ते जाते हैं और सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाने से आपको जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखने लगता है। इससे पोल्यूशन भी, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आपका जो पोल्यूशन है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहता है। सो द कार्बन साइकिल इज that carbon dioxide is taken by green plants from environment through photosynthesis, returned to environment through respiration, decomposition, and through burning of fuels. This cyclic movement of carbon from the atmosphere to the organism and from the organism to the atmosphere is known as the carbon cycle. ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और हमारे फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं और ऑर्गेनिजम्स जब मरते हैं तो वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को हम कार्बन साइकिल कहते हैं। ये एक साइक्लिक मूवमेंट है जहां की हम एटमॉस्फेयर से सारे ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर थ्रू डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग एंड रेस्पिरेशन दे एड इट बैक टू द एटमॉस्फेयर। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। अब एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यू हैव अ शिफ्ट इन द कार्बन साइकिल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है। नाउ वी कम टू व्हाट इज नोन एज द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल को समझने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पता है कि देयर इज ओनली वन वे बाय विच ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जिस प्रकार से रहती है वो फ्री ऑक्सीजन है और पूरे एटमॉस्फेयर में रहती है। इवन इन द लिथोस्फीयर दे आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच एग्जिस्ट, और यहां भी ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दे रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। Oxygen is also used with carbon and hydrogen and nitrogen to build the new molecules in the body. Oxygen का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? वो हमारे ब्लड फ्लो को हेल्प करता है। तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन लेता है और उसी द्वारा पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट किया होता है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर ओनली थ्रू फोटोसिंथेसिस, and these cycles are nature's mechanism to balance the ecosystem. तो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बना के रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, that we plant more trees or the forest is conserved or that we keep the green cover। इसी द्वारा से ऑक्सीजन जो है हमारे इस्तेमाल में आता है। The next cycle that we are going to talk about is called the nitrogen cycle। अब नाइट्रोजन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 78% ऑफ द एयर जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है वो नाइट्रोजन से भरपूर रहती है। पर ये जो नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में है वो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। In fact, this nitrogen which is present in the atmosphere cannot be used by plants also। और नाइट्रोजन की जरूरत हमें या प्लांट्स को क्यों है? Because nitrogens help us in protein synthesis। तो आप हर समय सुनते हैं कि अगर कोई की वेजिटेरियन डाइट है और उसको प्रोटीन लेने की जरूरत है तो उसको जो है पल्सेस बहुत सारी खानी चाहिए, और पल्सेस आर ऑलवेज यूज्ड एज plants which are planted in crop rotation to fertile the soil for the purpose of nitrogen fixation। तो ये जो प्रोटीन है ये नाइट्रोजन से बनता है, और इसको कंज्यूम करने के लिए we need what is called नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास प्रेजेंट है। और
ड्यूरिंग लाइटनिंग, और नाइट्रोजन हमारे इस्तेमाल में किस प्रकार से आती है, जब लाइटनिंग होती है या जब रेन होता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संग कंबाइन हो जाती है और वाटर में डिसॉल्व होके सॉइल में चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। Whenever there is thunder and lightning, तो रेन जो है और नाइट्रोजन रेन के साथ कंबाइन होकर के डिसॉल्व हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट एंटर्स द सॉइल एज नाइट्रेट्स। Nitrogen fixation bacteria convert atmospheric nitrogen to usable form. और जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर लाइक योर कोल एंड पेट्रोलियम, जब हम इन प्रोडक्ट्स को बर्न करते हैं तो ये फ्यूल्स कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन टू इट्स ऑक्साइड्स विच आर देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। आई रिपीट कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करती है और फिर ये फर्दर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। In industries under high temperature and pressure, nitrogen is converted to ammonia, which then is changed to ammonium salts. अब इसको बताने की लिए जरूरत आपको इसलिए है because nitrogen in the form of ammonia is being used widespread as a fertilizer. और क्योंकि इसमें इतने ज्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व हो चुके थे तो अब हम क्या बनाते हैं, what is called the green ammonia, इसको हम नीम अमोनिया भी कहते हैं। इसी की प्रक्रिया से हम नीम यूरिया और नीम अमोनिया बना रहे हैं और ये हम एज फर्टिलाइजर्स ग्रीन यूरिया ऐड करते हैं अपने सॉइल में टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। प्लांट्स जब नाइट्रोजन लेते हैं तो उससे प्रोटीन्स होते हैं। एनिमल्स गेट देयर शेयर ऑफ नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब हम किसी प्रकार से जानवरों को खाते हैं या हम पल्सेस खाते हैं जो कि पौधे हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होती है, तब हम अपने शरीर में प्रोटीन बनाते हैं। इन द इकोसिस्टम नाइट्रोजन इज स्टोर्ड इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर when plants and animals die, और जब उनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आई रिपीट, जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो उनके ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं हम, अमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। इससे अमोनिया इज गिवन बैक टू द एटमॉस्फेयर as free nitrogen by the denitrifying bacteria। तो आपका जो सॉइल है, जो कहते हैं ना कि पर क्यूबिक मीटर 50,000 species of bacteria and other organisms are present per cubic meter of soil। ये स्टैटिस्टिक्स है, आपको गूगल पे भी कहीं मिल जाएगी। तो ये जितनी ये 50,000 आपको बताई जा रही है उसमें यही नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया या आपके डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग द बैक्टीरिया, इसी तरह की आपको ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट मिलेंगे अपने सॉइल में। अब हमारे एक्शन से ये नाइट्रोजन साइकिल क्यों अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से जब बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो उसकी प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है उसकी वजह से एसिड रेन होती है। लेट मी रिपीट टू यू, acid rain is caused by the oxidation of nitrogen in the atmosphere। फिर एपेरोबिक बैक्टीरिया जो एनिमल वेस्ट पर एक्ट करता है वो भी नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है जो कि एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जब डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करता है तो एक ग्रीन हाउस गैस कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है विच इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। जब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब जब पेड़ बहुत वाइड स्केल में काटे जाते हैं तो एक वास्ट स्टोर ऑफ नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट्स में स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाता है और इससे एक इम्बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर एग्रीकल्चरल रन ऑफ विथ नाइट्रोजन वेस्ट कॉजेज सुएज कॉजिंग यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन आपको एक बार सवाल के रूप में ऑलरेडी आ चुका है। ये साइकिल्स भी आपको मेंशन्ड है। एक्चुअली ये साइकिल्स दे आर अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द
द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। इस वजह से मैं इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपको मैं इंट्रोड्यूस ही सिर्फ करूंगी डिटेल में। व्हेन वी आर डूइंग इकोलॉजी देन वी आर गोइंग टू स्टडी, बट यूट्रिफिकेशन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. What happens in eutrophication, and that is why it was a part of the aquatic plant system, जिसमें आपके wetlands और mangroves आते हैं. इसमें जब हम सॉइल में बहुत सारे प्रकार के फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो आर्टिफिशियली हमारे सॉइल में सल्फर और फॉस्फोरस की मात्रा अलोंग विथ नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो 3 things increase: the nitrogen content of the soil, the phosphorus content of the soil and the sulfur content of the soil. ये 3 मात्रा जब डिसबैलेंस हो जाती है और हमारे सॉइल में ऐड हो जाती है तो ये रन ऑफ होके जब भी किसी वाटर सिस्टम में एंटर करती है तो वहां की जो नेचुरल इकोलॉजी होती है उसको डिस्टर्ब करती है. Suddenly so much of nutrients being added to the water leads to an excessive produce of what is called the phytoplankton. I repeat, phytoplankton. A phytoplankton जो है is a food for the species which is available in water. It can be fish, it can be algae, it can be bacteria. But इसी के साथ साथ बहुत सारी outside in species हमारे पानी में ब्लूम करने लगती है. तो जब ये वाटर लिलीज या वाटर हाइसिंथ पूरी तरह से पानी को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में होती है वो कम हो जाती है. फाइटोप्लैंक्टन की वजह से पूरा एरिया कवर हो जाता है और जो धीरे धीरे प्लांट और एनिमल लाइफ एक एक्वेटिक सिस्टम में जैसे कि पॉन्ड में या लेक में सर्वाइव करती है ऑन इट्स ओन gets disturbed. And when it gets disturbed, we have a high, either 2 things happen. या तो वो पेड़ पौधे और जानवर फिशेस वहां से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं, बट इसका स्कोप होना चाहिए. मोस्टली वाटर बॉडीज आर on a stand-alone system other than the rivers, seas and oceans which are interconnected. तो जो पॉन्ड और लेक की मात्रा में आपको aquatic system मिलता है उसकी डेथ होने लगती है और इस वजह से यूट्रिफिकेशन, this is called the eutrophication of the water bodies. Eutrophication is the excessive supply of phytoplankton because of the presence of phosphorus, sulfur, nitrogen in excess to the requirement in soil, which as a result of runoff or because of rain gets flown into the river bodies or in lakes where they lead to excessive growth of plants and sometimes animals, which kill the natural biodiversity of the water body. और धीमे धीमे करके क्योंकि ऑक्सीजन नीचे पहुंच नहीं पाती तो सारे पेड़ जो नेचुरल हैं वहां के और जो जानवर हैं वो मर जाते हैं. This is called the process of eutrophication. Now we come to what is called the sulfur and phosphorus cycle. एक बात आप ये समझिए कि सल्फर जो फॉस्फोरस है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है. आई रिपीट, फॉस्फोरस आपको एटमॉस्फेयर में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर. तो फॉस्फोरस आपको ज्यादा करके रॉक्स में मिलता है और जब भी बारिश होती है या वेदरिंग टेक प्लेस करती है तब आपका फॉस्फोरस आपके रेन के साथ साथ मिलके सॉइल में ऐड हो जाता है. अब इस फॉस्फोरस के ऐड ऑन हो जाने से द प्लांट्स गेट अ वेरी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन. और हमारे ह्यूमंस में फॉस्फोरस की क्यों जरूरत होती है? हमारे ह्यूमंस में फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन्स. इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर न्यूक्लियोटाइड्स. जो सेल की एनर्जी पार्ट होती है उसके लिए भी हम फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं. अब डिफॉरेस्टेशन से फॉस्फोरस साइकिल अफेक्ट कैसे होती है? Deforestation of tropical forest reduces the available phosphate in the soil. फॉस्फेट साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, एक तो ये सबसे स्लो बायोकेमिकल साइकिल है क्योंकि ये वेदरिंग ऑफ रॉक से इन्वॉल्व है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फिर ये पानी में एब्जॉर्ब होता है और पानी के थ्रू ये फिर प्लांट्स के पास पहुंचता है. इसीलिए हम इसको एक्सेस में अलग से ऐड करते हैं और ये भी वन ऑफ द चीफ फीचर्स यूट्रिफिकेशन का है. तो जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो आपके पास जो अवेलेबल फॉस्फेट सॉइल में है वो रिड्यूस हो जाता है.
फिर दूसरी जो आदमी की प्रक्रिया है जिसको हम माइनिंग कहते हैं, माइनिंग द्वारा भी जो फॉस्फेट रॉक्स है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होने लगती हैं और इस वजह से फॉस्फेट की सप्लाई हमारे सॉइल में कम हो जाती है। फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड डिस्चार्ज ऑफ सुएज कॉजेज यूट्रिफिकेशन विच डिस्टर्ब्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो मैंने आपको बताया कि जब हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं क्योंकि फॉस्फोरस की कमी हो जाती है सॉइल में, उस वजह से ये रन ऑफ जब होता है सॉइल तो यूट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द aquatic system. Next we go to what is called the National Green Tribunal. अब ये National Green Tribunal Act जो है ये सिंपली 2010 में आया था। इसके द्वारा हम स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस और रिड्यूस करना चाहते हैं लिटिगेशन हायर कोर्ट्स का। इस वजह से ये एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाया गया अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। अब आगे की क्लास हम फर्स्ट वी विल टेक अप द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, फिर मैं आपको छोटा छोटा एक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 1927 का फॉरेस्ट एक्ट, 1980 का फॉरेस्ट एक्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। और जब हम इसकी बात करेंगे तो साथ साथ में हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की और सोशल फॉरेस्ट्री की भी आपसे बात करेंगे। So the National Green Tribunal was established in 2010 under Section 3। फिर से इसको एस्टैब्लिश किया गया 18 अक्टूबर को और ये स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए और टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किया गया। ग्रीन ट्राइब्यूनल्स की बात हम डिटेल में आगे जब इकोसिस्टम की बात करेंगे या इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करेंगे तब आपसे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टू टेल यू ऑनेस्टली, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल is at present not so active, and so we will take it as a point of discussion a little later. Although National Green Tribunal आपके क्वेश्चन में आ चुका है, जब ये एस्टैब्लिश हुआ था उसी के बाद आया था। अब हम पहले बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की क्या कहती है? ये कहती है कि हमको एक एनवायरमेंट स्टेबिलिटी रखना है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। इसी वजह से मैंने आपको पूरी पहले वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है तो इसी के साथ साथ फॉरेस्ट भी डिस्टर्ब होते हैं। तो जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है, विच वॉज मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 1952, जो कि 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी हमारे फॉरेस्ट को यूज बेस्ड तरीके से देखती थी, मतलब हमारे लिए फॉरेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर्सपेक्टिव से 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी बनी। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है, इट एम्फसाइजेस इकोलॉजिकल बैलेंस, इट एम्फसाइजेस कंजर्वेशन and it takes into consideration the rights of the people who are dependent on the forest and takes them as active participants. I repeat, it takes them as active participants in the process of forest conservation. So environment stability, ecological balance, including atmospheric equilibrium बना के रखने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। अब इसका सबसे मेजर अचीवमेंट ये मानते हैं कि जब हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था इन 1987, तब हमारा फॉरेस्ट कवर सिर्फ 19.7% था, जबकि आपके 2019 की रिपोर्ट कहती है कि हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट ऑल्सो एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट दोनों मिला करके आपके पास इस समय 24.6% की मात्रा में फॉरेस्ट कवर अवेलेबल है। ये लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, लाइक थ्रू द प्रोग्राम ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इन्हें इन्वॉल्व करके अपना एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना चाहता है। एट द सेम टाइम इट वांट्स टू मेंटेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री थ्रू ex situ एंड in situ conservation measures। मतलब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए नेशनल पार्क भी खोलेगा और जूलॉजिकल पार्क यानी कि जूज भी खोलकर मेंटेन करेगा। फिर ये एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। इसी के साथ साथ जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो ये कहती है कि
it will create a platform which will start a people's movement involving women at large for the objective and to minimize pressure on existing forest. मतलब ये औरतों की सहायता से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को इनकरेज करेगा. व्हाई? बिकॉज जो ग्रेटेस्ट डिपेंडेंस है विमेन की, डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पर, वो विमेन की होती है. बिकॉज दे हैव टू कलेक्ट फॉरेस्ट वुड टू कुक फूड. सबके पास एलपीजी नहीं अवेलेबल है. फिर घर में खाना बनाने के लिए भी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी सब्जी है या साग है, वो सब आपको फॉरेस्ट ही देता है. तो जो पॉपुलेशन रिजर्व फॉरेस्ट के ट्रांजिट और बफर जोन में रहती है, वहां की औरतें बहुत ज्यादा जागरूक है. एंड आई विल बी जस्ट टेलिंग यू ऑफ अ केस स्टडी विच हैज हैपेंड इन द एरिया ऑफ उड़ीसा वेयर विमेन आर एट द फोरफ्रंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो ये जो 1988 की पॉलिसी है, ये विमेन को फोरफ्रंट पे लाती है, विच आई थिंक इज इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. फिर ये प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट की बढ़ाना चाहती है टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बैकग्राउंड है 1988 पॉलिसी का, वो ये कहता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि फॉरेस्ट एक तरफ और ह्यूमन नीड्स एक तरफ. हमें दोनों की एक सिम्बियोसिस चाहिए. So again the concept of sustainable development is coming into play. आप देखेंगे मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आती हूँ, बिकॉज पोस्ट 1992 every policy, whether and every act of the government, not only of India but abroad and of the United Nations, is based on the concept of sustainable development involving people's participation in the movement. मतलब कि आप खुद भी जिए और पर्यावरण को भी जीने दीजिए, और इस प्रकार से आप पर्यावरण का इस्तेमाल कीजिए कि जैसा वो आपको मिला है उसी से या उससे थोड़ा बेहतर आप अपने आगे की जनरेशन के लिए इस पर्यावरण को छोड़ के जाएंगे. इस पर्यावरण को इसी प्रकार से मेंटेन करने के लिए आपको पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब पूरे सारे समाज की जरूरत है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि आपके पर्यावरण पर डिपेंडेंट है. फिर ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि हमको ये फॉरेस्ट की जरूरत और मेंटेन करने के लिए इसलिए जरूरत है ताकि सॉइल इरोजन रुके, जो डेन्यूडेशन कैचमेंट एरिया में आ रहा है वो ना हो, जो सैंड ड्यून्स की मार्च है पर्टिकुलरली इन एरियाज ऑफ राजस्थान एंड कोस्टल ट्रैक, उसको ये रोक सके, और जो हमारे पर्यावरण में फ्लोरा और फौना है जो हमें नेशनल हेरिटेज के रूप में मिला है, उसको हम प्रोटेक्ट करें और उसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम काम करें. तो हम इस फॉरेस्ट पॉलिसी में अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना चाहते हैं. हम जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा पीपल का पार्टिसिपेशन लेके फॉरेस्ट के साथ साथ लोगों की जरूरतों को भी पूरा करेंगे. हम सॉइल के जो डिग्रेडेशन है या जो सॉइल इरोजन है उसको रोकेंगे. ऑन डेजर्टिफिकेशन यानी कि ऑनवर्ड मार्च ऑफ द डेजर्ट है उसको रोकेंगे. हम सॉइल को रिटेन करके रखेंगे ताकि वाटर ठीक से एब्जॉर्ब हो और हमारे वाटर बॉडीज इंटैक्ट रहे. और इस पूरी प्रक्रिया में हम औरतों का सहयोग ज्यादा मानेंगे, क्योंकि औरतों की जरूरत पेड़ पौधों पे, फॉरेस्ट पर ज्यादा मानी जाती है. अब मैं आपको बता रही थी कि देयर इज अ स्टडी विच वाज कंडक्टेड इन द मयूरभंज फॉरेस्ट एरिया, और यहां पर एक एनजीओ है वसुंधरा जिसने की ये स्टडी कैरी आउट करी है. यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ विमेन्स मूवमेंट. अब ये विमेन मूवमेंट क्या कहलाता है? इस विमेन मूवमेंट का नाम है थेंगा पाली. थेंगा पाली, आई रिपीट, हम लोग जिसको हिंदी में ठेंगा कहते हैं, वैसे वो उड़िया लैंग्वेज में थेंगा पाली है. सो इट इज THENGAPALLI, थेंगा पाली. इसमें 3 से 6 औरतें एक ग्रुप में रहती हैं और वो फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग करती हैं, और यहाँ पे ये बहुत वाइड स्प्रेड पोचिंग को रोकती हैं. ये स्टडी है नायगढ़ एरिया. नायगढ़, I hope you can spell नायगढ़. It is NAYGARH, नायागढ़.
नायागढ़ एरिया इन 300 विलेजेस, जहां पे कि औरतों ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं। ये राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करती हैं और पोचिंग को रोकती हैं। मयूरभंज के एरिया में आपको बहुत सारे टाइगर्स मिलते हैं और यहाँ की फॉरेस्ट को इस तरह से कंट्रोल करके इन्होंने ना ये पोचिंग भी रोकी है और साथ साथ में इन्होंने यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर्स होते थे उसको भी कंट्रोल किया है। तो जो इनका थेंगा पल्ली होता है उसमें थेंगा जो है आपका थेंगा मीन्स अ ग्रुप और पली मीन्स योर टर्न, मतलब आप थेंगा एक स्टिक होती है और उस स्टिक के द्वारा, मतलब ये औरतें कोई आर्म्स नहीं कैरी करती, कोई गन नहीं कैरी करती, ये सिर्फ एक डंडी लेके रहती हैं और से और पोचर्स को उससे मारती है और उन्हें भगाती हैं। और इनका डर इतना मैसिव है कि इस वजह से यहाँ पर पोचिंग एक्टिविटी बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। अब अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उड़ीसा का नायबगंज एरिया में, नायगढ़ एरिया में, वो इस एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। सो थेंगापली इज अ मूवमेंट ऑफ 3 to 6 विमेन इन अ ग्रुप, जिसमें थेंगा का मतलब डंडी होता है या स्टिक होता है और पल्ली का मतलब मीन्स माई टर्न, मतलब इस बार मेरी बारी है। ये ग्रुप्स में मूव करते हैं और हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी 300 विलेजेस हैं जो थेंगापली के अंडर में आती हैं इन नायागढ़ विलेज नियर मयूरभंज ऑफ उड़ीसा। इसमें वसुंधरा करके एक एनजीओ है जो काम करती है। और जब हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात अब आपसे करेंगे तो आपको ये बात समझ में और अच्छे से आएगी। What I'm trying to tell you is that the joint forest management, which has become a keystone of management under the National Forest Policy of 1988, has created a small revolution in almost all the buffer and protected zones of India. अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जब शुरू हुआ था तो ये वे बैक 1971 में एक छोटी सी विलेज थी कॉल्ड दी आराबाली विलेज, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ये आपको आपके पीपीटी में दिख रहा है। ये वहां पे, ये सबसे पहले वहां पे इस्तेमाल हुआ, बट हमारी पॉलिसी में जब इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया है and at the center by a circular in June 1990, तो एक्चुअल लॉन्च जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का 1990 में माना जाता है। इसमें जो है कोई भी एक फॉरेस्ट ब्लॉक, तो जब आप फॉरेस्ट ब्लॉक ले रहे हैं मींस इट्स अ पार्ट ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वहां के एरिया को आप एक ब्लॉक को हैंड ओवर करते हैं एक विलेज कम्युनिटी के लिए, और यहाँ विलेज कम्युनिटी एक बनाती है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी। अब जब आप इसको लिखेंगे तो आप बीच में लिख दीजिए फॉरेस्ट ब्लॉक और उसके चारों तरफ आप एरो बनाइए। तो फॉरेस्ट ब्लॉक में एक विलेज इन्वॉल्व है, विलेज कम्युनिटी इन्वॉल्व है, एक आपका एनजीओ इन्वॉल्व है और एक आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो बीच में आप एक फॉरेस्ट ब्लॉक बना दीजिए स्क्वायर शेप में और वहां 3 एरोज जाते हुए दिखाइए, तो ये आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इट इज नॉट आइंस्टाइन साइंस, इट्स वेरी सिंपल। इस तरह से अगर आप पिक्टोरिकली अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो व्हाट हैपेंस इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज दैट कि आप एक ग्रुप बनाते हैं विच इज कॉल्ड द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी, जिसमें कि विलेज के जितनी फैमिलीज है वो रिप्रेजेंटेड है, चाहे लेडी जेंट्स दोनों, चाहे एक। और ये जो है किसी भी लोकल एनजीओ के साथ और आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोकल ऑफिशियल के साथ इस ब्लॉक को मेंटेन करने का काम करती है। अब इसी जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी बनाई गई, ये तो पूरी विलेज को इंक्लूड कर लिया। अब इसको रन करने के लिए छोटी सी एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई जाती है जिसमें थोड़ी फैमिलीज विलेज की और फिर आपके पंचायत का एक सदस्य और उसी के साथ साथ फॉरेस्ट का एक ऑफिसर, ये जुड़ के एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाता है जो प्लान करता है कि ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी इस साल के लिए क्या काम करेगी। और फिर इसके बदले में इस सारी कम्युनिटी को नॉन टिम्बर, मतलब अदर देन ट्रीज, उस प्रकार से, तो आप समझ लीजिए जैसे बैम्बू, अकेशिया या फ्रूट्स,
या फॉर्डर, इस प्रकार की चीजें आपको ये इन रिटर्न मिलती है आफ्टर प्रोटेक्टिंग द एरियाज अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फिर आपको बड़ा अमाउंट कब मिलता है, जबकि इस ब्लॉक के पेड़ काटे जाते हैं, और ब्लॉक के पेड़, हर ब्लॉक के पेड़ थोड़े सीक्वेंस में कटते रहते हैं, बिकॉज उनका कोटा होता है विच इज फिक्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और जब वहां पे ट्री फेलिंग होती है तो फिर इनको एक बड़ा चंक ऑफ पैसा मिलता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज नाउ the cornerstone matlab it is a part of the most important part of every forest conservation measure which is being done by the government of India। अब जो ये joint forest management है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमर्शियल राइट्स नहीं हो सकती, एंड दीज एरियाज विच कम अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डू नॉट हैव प्राइवेट ओनरशिप एट ऑल। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। अब सोशल फॉरेस्ट्री में हम क्या क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री उन एरियाज को प्रोटेक्ट करता है विच आर नॉट अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। आई रिपीट, सोशल फॉरेस्ट्री इज अंडरटेकन इन एरियाज विच आर नॉट अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये हम क्यों लेते हैं, करते हैं, हम एनवायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट के लिए सोशल फॉरेस्ट्री का काम करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री इज फॉर द पर्पस ऑफ द पॉपुलेशन और द पीपल एट लार्ज। बट इसके साथ साथ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पेड़ पौधे लगा के एनवायरमेंट स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, और उसी के साथ साथ हम लाइवलीहुड की प्रक्रिया भी, मतलब किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये जो इससे हम एनवायरमेंट, सोशल और रूरल डेवलपमेंट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976, all forests under this area under social forestry, all programs come under urban forestry, they come under rural forestry, and they come under what is called the farm forestry। अब अर्बन फॉरेस्ट्री का जो आपका मॉडल है वो पुणे के पास एक वगाई फॉरेस्ट लगाया गया है कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी में, जिसमें कि आपकी टाटा मोटर्स भी एक हिस्सेदार हैं। और इसके साथ इन्होंने एक बैरन लैंड 2015 में अक्वायर किया, और इसमें पेड़ पौधे लगाने से यहाँ पे अब 25 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, और कई प्रकार के आपको पौधे मिलते हैं। तो जो अर्बन फॉरेस्ट्री का आपका मॉडल है, और उस अर्बन फॉरेस्ट्री के मॉडल में आपको मिलेगा कि एक कॉन्सेप्ट जो आया है अभी, इसको कहते हैं नगर वन स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये नगर वन स्कीम क्या करती है कि ये जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज है, तो अर्बन फॉरेस्ट्री आपकी कहाँ हो रही है, अर्बन फॉरेस्ट्री आपकी सारी की सारी सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा के ज्यादा एरिया आपका इज अंडर ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपके पास घर हैं, इतने सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो आपको कहाँ पौधे लगा सकते हैं, या तो आप रोड साइड लगा सकते हैं या तो कैनाल साइड लगा सकते हैं। तो और जो कि एरियाज म्यूनिसिपल बॉडीज के पास हैं, और जो मेट्रोज हैं उनकी जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन बॉम्बे वी हैव अ गार्डन विच इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल पार्क इन माहिम। ये एक बहुत बड़ा पार्क है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ पौधे मेंटेन किए गए हैं। आपको यहाँ पे जो नेटिव एनिमल्स हैं वो भी मिलेंगे, तो फ्लोरा फौना दोनों एग्जिस्ट करता है इस फॉरेस्ट में। इसी प्रकार से पुणे के पास जो 2015 की प्रक्रिया की गई है वो भी एक अर्बन फॉरेस्ट्री के अंडर आती है, और इसमें मॉडल क्या होता है कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आपको लैंड हैंड ओवर कर देते हैं, और ये लैंड हैंड ओवर करने के बाद आप इसमें अपने हिसाब से पौधे लगाते हैं। तो इसमें भी आप एनजीओ को यूज करते हैं, और जो आपकी वन स्कीम है, नगर वन स्कीम, इसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर आप अभी इफ यू ट्राई टू गूगल एंड सी, सो देयर आर सो मेनी एनजीओज हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन द एरिया ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। इसमें आप नाम पढ़ेंगे ऑफ एन एनजीओ कॉल्ड संकल्प तरु। संकल्प तरु कहती है कि इसने अभी तक
21 स्टेट में 23,79,000 पेड़ लगाए, विच इज अप टू 2021। इसी तरह से संकल्प तरु के साथ साथ एक और एनजीओ है जिसका नाम है से ट्रीज। से ट्रीज क्या कहता है कि बाय 2025 ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR फंड के सहयोग से 10 करोड़ पेड़ लगाएगा ऑल ओवर इंडिया। और फिर एक आप और पढ़ेंगे, पेड़ लगाओ growtrees.com। तो जो growtrees.com है वो भी इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। और ये 3-4 एनजीओज हैं जिनका जिक्र आप अभी 2021 में भी पाते हैं। अगर आप जाएंगे इनको गूगल पे देखेंगे तो इनकी बहुत खूबसूरत मेंटेन्ड वेबसाइट है, बट ये अर्बन फॉरेस्ट्री और रूरल फॉरेस्ट्री के एरिया में अच्छा योगदान दे रहे हैं। इसलिए अगर आप इन्हें कोट करेंगे तो इट इज वेरी सेफ। सो वन इज संकल्प तरु, वन इज से ट्रीज एंड वन इज growtrees.com। ये 3 को भी आप कोट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इज योर रूरल फॉरेस्ट्री। अब रूरल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, आपका एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या संकल्प है, ये नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी एक बनाई गई 2014 में, जिसके तहत ये कहते हैं कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देंगे। अब एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट कि आप अपने क्रॉप प्लांटेशन के साथ साथ पौधे भी, ट्रीज भी लगाएंगे जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए स्टार्ट किया गया। उसी के साथ साथ क्योंकि आप पौधे भी लगाएंगे और आप खाना भी उगाएंगे तो आप इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते रहेंगे, और साथ साथ में जो रिस्क हो जाता है कि कभी कभी मॉनसून फेल हो गई जैसे, तो आपके क्रॉप्स तो नाश हो गए, तो उसको रोकने के लिए भी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव इनकम रहे। तो यूकलिप्टस के पौधे लगाए जाते हैं, बैम्बू के पौधे लगाए जाते हैं, जिसको लगाने से आपकी इनकम सप्लीमेंट होती है और फेलियर ऑफ क्रॉप्स में ये आपका सहयोग देते हैं। इसी के साथ साथ आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो अभी जितनी भी नरेगा की पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं उसमें आपका एग्रो फॉरेस्ट्री का काम चल रहा है। आई रिपीट, रूरल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री सारी की सारी नरेगा की पॉलिसी में कवर हो रही है और छोटे छोटे काम इसमें किए जा रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको फ्री सीड सप्लाई करता है। ये आप अपने खेती करने वाली एरिया में ही पौधे लगाते हैं और फ्रूट ट्रीज भी बहुत हद तक लगाते हैं, मैंगो ट्रीज भी लगाते हैं। इससे आपका फॉरेस्ट कवर भी बढ़ता है और आपको खाने की भी और आपकी इनकम अदरवाइज मॉनिटरीली भी बढ़ती है। अब हम आज बात करेंगे आपसे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होता है, जो कि कम्युनिटी लैंड पे किया जाता है। तो जो पंचायत है आपकी या आपके पास जो गांव में जमीन है, जो सबकी जमीन है, उसको आप खाली ना छोड़कर उस पे पेड़ पौधों का आप पेड़ पौधे लगाते हैं। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको सहयोग देता है और इस फॉरेस्ट्री से आप पर्यावरण का भी सुधार करते हैं। और जो लैंडलेस फैमिलीज है, मतलब जिनके पास किसी भी प्रकार से छोटा भी कोई फार्म होल्डिंग नहीं है, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप बढ़ाते हैं। अब वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड द फार्म फॉरेस्ट्री। अब फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इसमें फार्मर खुद, मतलब जो किसान है, वो खुद ही कमर्शियल नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए अपने फार्मलैंड को यूज करता है और इसके लिए इसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग मिलता है। नाउ वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसको कि हम नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी कंफ्यूज्ड। मैं आपको बता रही हूं कि ये जो चारों प्रोग्राम्स मैंने अभी आपको बताए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सोशल फॉरेस्ट्री का जो प्रोग्राम है, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द 9th 5-year प्लान। और जब इनको आपने कंबाइन करके और फिर री इंस्टीट्यूट करके आप इन्हें चला रहे हैं तो उसको आपने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम का नाम दे दिया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, बस ये याद रखिएगा कि जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है ये एक्सेलरेट और सपोर्ट करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, उनके प्रोटेक्शन को और उनके मैनेजमेंट को थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी।
तो वही प्रोग्राम्स हैं, बट उसको एक आपने नया रूप दे दिया अंडर नेशनल एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक तो डिफॉरेस्टेशन होता है जिसमें आप पूरे के पूरे पेड़ काट डालते हैं। एफॉरेस्टेशन होता है जब आप पेड़ लगाते हैं। अब पेड़ लगाने का काम आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पेड़ लगाने का काम आप दो जगह करते हैं। एक, कोई बैरन लैंड हो जिसको आप रिक्लेम करते हैं, और दूसरा जहां से आपने डिफॉरेस्टेशन किया है वहीं पर नए पेड़ लगाते हैं। तो एफॉरेस्टेशन इज द प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। सो एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम is being carried out as one of the major missions, which is called the Green India Mission. It was launched under the National Action Plan for Climate Change in Rural India in 2014. अब आपको ग्रीन इंडिया मिशन की मैंने वो पूरी हाइलाइट्स दे रखी हैं, आप इसमें सारी हाइलाइट्स पढ़ लीजिए, जो कि ग्रीन इंडिया मिशन में आपको सारी की सारी मिल जाएगी कि किस एरिया में, कि वेटलैंड में आपको कितना हेक्टर बढ़ाना है, ग्रासलैंड में आपको कितने हेक्टर बढ़ाना है, बायोडायवर्सिटी में आपको कितने हेक्टर बढ़ाना है, इकोलॉजिकली कितने ओपन फॉरेस्ट आपको रिस्टोर करने। ये सारी फिगर्स हैं जो मैं आपको बताती, बट क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में लिखे हुए हैं इसलिए आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे इसको रिपीट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुझे जरूरत नहीं लगती, बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट आपको फॉरेस्ट कवर जो है बढ़ाना है इंडिया का बाय 5 मिलियन हेक्टर्स। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा 24.06% है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और हम क्या इन्वेसिज कर रहे हैं? हम इन्वेसिज कर रहे हैं कि बाय 2030 33% हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ जाए। ये सब ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर आता है। तो जो हर एक प्रोग्राम के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, या डिफरेंट हमने जिनको अलग अलग दिया हुआ है कि ये आपको अचीव करना है, दीज आर योर गोल्स। तो सारी गोल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इकोसिस्टम डिफ्रेंशिएट की गई है, और आप उनको भली भांति यहां से पढ़ सकते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन टू द रेंज ऑफ 50 to 60 मिलियन टन बाय 2020 होना चाहिए, ऐसा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री क्लेम कर रही है, या ये इनका आप गोल मान सकते हैं। तो ग्रीन इंडिया मिशन भी हमारे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ, सोशल फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के साथ साथ काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के साथ साथ ये विलेज लेवल पे ग्राम सभा में भी काम करता है। तो ये सारी जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये आपको पौधे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम्स मॉनिटर करते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन को अचीव करने के क्राइटेरियाज इकोलॉजिकली रिस्टोर फॉर ओपन फॉरेस्ट, फॉर ग्रासलैंड्स, फॉर वेटलैंड्स अलग अलग हैं, और फॉरेस्ट कवर हमें कितना बढ़ाना है वो भी अलग है। वो सारे आपको मैंने स्लाइड में डाल दिए, आप कृपया करके उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। नाउ वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। अब जब 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया तो इसने कहा कि आप जितने भी फॉरेस्ट हैं, अगर मान लीजिए कि किसी कमर्शियल पर्पस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, और इस एरिया में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बताऊंगी, जब भी आपको कोई रिजर्व फॉरेस्ट चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आप उस लैंड को जब अक्वायर करते हैं तो उसके बदले में आपको एक कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है। मतलब जितनी जमीन आपने ली उसके बराबर की आप एक तो जमीन प्रोवाइड करेंगे, पहला ये। दूसरा, उस ही जमीन पर अगर मान लीजिए वो बैरन लैंड है, तो जो पेड़ आपने जितने पेड़ यहां खोए हैं उतने पेड़ आप दूसरी वाली जमीन पर लगाएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करें, जिसको कि आगे आप पढ़ेंगे कि कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन कैंपा करके एक आपका नया लॉ भी बनाया गया है,
जब भी आप कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करें तो जो जमीन आपने रिजर्व फॉरेस्ट की ली है उसी के बगल की जमीन के बराबर आप उसको देने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से आप एक दूसरी जमीन भी खोज के निकालेंगे। अगर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपके पास कहीं जमीन उपलब्ध नहीं है तो जितना एरिया आपने रिजर्व फॉरेस्ट का ले लिया है उसका डबल द रेट ऑफ फंड अंडर कैंपा आप प्रोवाइड करेंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट को एक कमोडिटी समझा जा रहा है। अगर आप किसी भी एरिया को हैंड ओवर कर देंगे कमर्शियल पर्पस के लिए तो आप कितना भी कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन क्यों ना कर दें, जो आपके पास बायोडायवर्सिटी ओरिजिनल फॉरेस्ट में है वो तो कभी भी आपको यहाँ पे मिल नहीं पाएगी। तो अगर आपको वो बायोडायवर्सिटी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी देन देयर इज नो पर्पस ऑफ कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। So compensatory afforestation is being done more in terms of paperwork rather than in reality। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ that in December 31st 2005 in the Western Ghats in the state of Karnataka एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व है, अब उसको बायो रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां से दो रिवर्स कॉल द भद्रा रिवर एंड द लाखिया रिवर, और ये लाखिया वैली है, यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग की जा रही थी। जिस आयरन ओर की माइनिंग करने से यहाँ का जो है फॉरेस्ट कवर बहुत हद तक डैमेज हो गया। 31st December 2005 is a landmark judgment by the Supreme Court जिसने आयरन ओर की माइनिंग यहां पर बैन कर दी इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक। हालांकि अभी भी यहां पर इसकी ये बैन तो हो गया 2005 में और यहां पे एक नेशनल फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया, इसको रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर भी आ गया, पर तभी भी यहां पे अभी भी माइनिंग की एक्टिविटी तो नहीं कंटिन्यू करी, बट एक इको टूरिज्म के अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि ये पूरे इकोसिस्टम को समझिए। ये जो वेस्टर्न घाट का रीजन है इट कम्स अंडर एवरग्रीन फॉरेस्ट और यहाँ पे अबाउट 600 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर होती है। यहाँ के जो नेचुरल फॉरेस्ट्री थी वो ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट की थी और शोला फॉरेस्ट की थी। शोला फॉरेस्ट इज यूनिक टू द इंडियन सिस्टम, आपको ये मध्य प्रदेश में मिलता है और वेस्टर्न घाट्स लाइक कर्नाटक में मिलता है। तो ये फॉरेस्ट को आपने किससे रिप्लेस किया, जब इस ऑर्गेनाइजेशन ने जब कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन किया तो इसने उस लैंड पर अकेशिया और बैम्बू को उगाया। अब अकेशिया बैम्बू आर नॉट नेटिव टू द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ दिस वैली कॉल्ड द लाखिया वैली। इस वजह से आपने अलग तरह की स्पीशीज यहां पर इंट्रोड्यूस करी। तो इससे एक तो आपने बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट किया क्योंकि यहां बहुत लो ग्रेड आयरन ओर निकलता था। तो क्या होता था कि अगर आपने माइनिंग करी सपोज इन 100 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया तो इसका 70% तो सॉइल के फॉर्म में नीचे चला जाता था भद्रा रिजर्वॉयर में, जहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, और जो 30% था उसमें से खाली आप आयरन ओर ढूंढते थे, जिस प्रोसेस में कि पूरी भद्रा रिवर में और जो भद्रा रिजर्वॉयर में है वो आयरन ओर से फिलअप हो गई है। तो दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हैज स्टॉप्ड माइनिंग इन दिस एरिया। ऐसे ही मैंने आपको पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व का बताया कि पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व इज कमिंग अंडर द स्कैनर बिकॉज ऑफ द माइनिंग ऑफ डायमंड्स, और वहां के चीफ मिनिस्टर तो अभी जो बफर जोन डिक्लेयर होनी है उसको भी डिक्लेयर करने के लिए जरूरत नहीं समझते, और उन्होंने लोगों को भड़काया है। जो लोग इस बफर जोन पे डिपेंडेंट है उनको किस तरह से भड़काया गया, क्या कह के कि जिस दिन हम बफर जोन आपको डिक्लेयर कर देंगे उस दिन से आप इस फॉरेस्ट में नहीं जा पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज नाउ अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वी आर इंकरेजिंग पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड not only conserve forest but use them for their purpose also। और इसी के तहत एक और केस स्टडी की गई है which has been carried out in the
भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा अगेन इन द एरिया ऑफ कर्नाटक. यहाँ पे फ्रॉम द पीरियड 2002 to 2006 there were about 61 families who were settled by the government of India along with the forest department. और इसको सक्सेस स्टोरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ का फॉरेस्ट कवर भी बड़ा है और यहाँ पर अब जो लोग डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पर उनको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की सुविधा प्रदान की गई है. ये स्टडी की गई है बाय कृति के कारनाथ. आई रिपीट, ये स्टडी इज बाय कृति के कारनाथ. अगर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन गूगल करेंगे और बहुत सारे आपको केस स्टडीज मिलेंगे, उसमें आप भद्रा रीसेटलमेंट पढ़ेंगे. तो ये सारे लोग वहां पे सेटिस्फाइड इसलिए रहे क्योंकि किसी भी प्रकार का फोर्सफुल इविक्शन इनके साथ नहीं किया गया. हमने फोर्सफुल इविक्शन कहाँ देखा है? मोस्ट फॉरेस्ट रिजर्व्स या टाइगर रिजर्व्स में फोर्सफुल इविक्शन हुआ है. जैसे आपका गिर जहां पे लायंस लाए गए वो फोर्सफुल इविक्शन है. कान्हा में आपके फोर्सफुल इविक्शन किया गया है. और इसी प्रकार से हमने देखा कि अभी जो ये वेस्टर्न घाट कर्नाटक में भद्रा रिवर के आसपास है ये किया गया. तो जो भद्रा का रीसेटलमेंट है, भद्रा टाइगर रिजर्व का जो रीसेटलमेंट है, इज बीइंग डन प्रॉपर्ली अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इट हैज यील्डेड very positive results. Whereas a little distance away in the Western Ghats, in the state of Karnataka, where you have the Lakya Valley, वहां पे इरोजन हो गया बिकॉज ऑफ माइनिंग. और मैं आपको ये इसलिए बता रही थी क्योंकि जो कॉम्पेंसेटरी ऑफ एफॉरेस्टेशन में लैंड लिया गया वहां पेड़ लगा दिए गए बैम्बू और अकेशिया के, जो कि यहाँ के नेटिव ट्रीज नहीं थे. इसलिए जो ये कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ठीक नहीं है और इसका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है. अब इसमें आपने 2016 में एक नेशनल कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट बना दिया है और इसी तरह से आप एक स्टेट में बना के रखते हैं. और जो ये कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का फंड आता है, इट इज बीइंग नाउ सीन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अब ये क्यों उनके द्वारा देखा जा रहा है? क्योंकि आप इसी में पढ़ेंगे कि इसके फंड को बहुत हद तक मिसयूज किया गया है और इसकी आड़ में, मतलब कॉम्पेंसेटरी मैनेजमेंट एफॉरेस्टेशन की आड़ में हमने बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया लूज किया गया है और ये फंड का बहुत हद तक मिसयूज है. इसमें लो क्वालिटी फॉरेस्ट कवर डाला जा रहा है और देयर इज वेरी पुअर सर्वाइवल रेट ऑफ द प्लांटेशंस व्हिच आर बीइंग यूज्ड हियर. एक सक्सेसफुल स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज ऑफ आंशी डांडेली. आंशी डांडेली again comes in the state of Karnataka and partly in the state of Goa. यहाँ पे जो है आपकी जो डांडेली नेशनल फॉरेस्ट था, इसको वहां पे एक डांडेली हाइड्रो प्रोजेक्ट आया. तो समवेयर इन 2002 इसका एरिया घट के 437 स्क्वायर किलोमीटर्स हो गया. तो two people together, one is Balachandra Hegde and one is Sanjay Gubbi. Balachandra Hegde and Sanjay Gubbi went to the forest department and they have done a tremendous job of increasing this Anshi Dandeli forest cover to 2,189 square kilometers, जिसमें से कि 300 square kilometers comes under reserve forest. तो जो पहले सिर्फ डांडेली रिजर्व फॉरेस्ट था वो अब एक अंशी डांडेली रिजर्व फॉरेस्ट हो गया है और इस वजह से हमको 300 स्क्वायर फीट एरिया ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट भी मिला है. इसी प्रकार से जब मैंने आपको मयूरभंज एरिया का फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बताया था, तब वहां पे एक वसुंधरा करके एनजीओ है जो उनके साथ काम कर रही थी और इस प्रयोग में 500 acres of forest land has been so far reclaimed under joint forest management. अब we will just touch upon the Forest Conservation Act of 1980 जो कि हर जगह लागू है except in the state of जम्मू कश्मीर जिसका अपना एक्ट है. एक ये रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए. इट कंट्रोल्स डी-रिजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. इट रेगुलेट्स डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड. पर आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट आने के बाद से हम बहुत सारी एडवाइजरी कमेटी के थ्रू लैंड दिए जा रहे हैं अप्रूवल फॉर कमर्शियल पर्पसेस, अ प्राइस विच वी विल पे वेरी सून.
Then you come to the Indian Forest Act of 1927. Indian Forest Act of 1927 is applicable to all the states except states like Andhra and Karnataka, which have their own Forest Act. इसमें ये कहा जा रहा है कि डिटेल्ड राइट्स बताई गई हैं फॉरेस्ट की आपकी क्या है, और साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कौन से फॉरेस्ट ट्रीज आपके रिजर्व लिस्ट में आते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि आप पढ़ेंगे बैम्बू के बारे में. बैम्बू एक रिजर्व स्पीशीज था अंडर द एक्ट ऑफ 1927, पर जब आप बैम्बू अब पढ़ेंगे तो अब इसको हमने डी रिजर्व कर दिया गया है. तो जो ये फॉरेस्ट कवर है ये under the Act of 1927, it is fully controlled by the government and it reserves specific tree species under reserve forest. फिर we come to the Biological Diversity Act of 2002. Now, Biological Diversity Act has come after the Biodiversity Summit in Rio, which took place under the flagship of the United Nations. इसमें क्या है? Conservation of biological diversity, sustainable use of its components, and equitable sharing of the benefits of the biological resources. So, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि आपके IUCN के अंडर कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं और उनका प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे. फॉर दिस पर्पस अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वी हैव व्हाट आर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, जिसके द्वारा हम लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड्स को डाइवर्ट करते हैं और उस प्रकार से हम अपनी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं. Now we come to the last part of conservation, which is bamboo. Bamboo and its promotion. Bamboo belongs to the family of Poaceae या ग्रामीण. Bamboo इंडिया का जो लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया कम्स अंडर बैम्बू कल्टिवेशन. बैम्बू इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट. इट इज अनदर सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी सोर्स फॉर द वुड. तो ये ट्री फेलिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करता है. हम बैम्बू प्लांटेशन के द्वारा अपने कार्बन पूल को भी बढ़ाते हैं और ये हमारा बिलो द ग्राउंड जो राइजोम्स एंड रूट्स हैं उसमें हमारा कार्बन पूल बढ़ाता है. ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है मार्जिनल फार्मर्स को और लैंडलेस लोगों को along with women, and it is particularly being promoted at a massive scale in the northeast. अभी हमने इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया है, हमने बैम्बू को रिजर्व स्पीशीज की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है. अब रिजर्व स्पीशीज की लिस्ट से निकालने से हम अब इस पेड़ को कहीं भी लगा सकते हैं. इंडिया फॉरेस्ट एक्ट को हमने कब इसकी को बदलाव में कब लाया, इन 2017. टू इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ बैम्बू इंडस्ट्री हमने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को भी बदला है. और चाइना का, other than China, we are the second country in the world where we are having the maximum area under bamboo plantation. अब ये जो मैंने PPT आपसे शेयर किया ये आपके पास रहेगा. प्लीज गिव मी अ फीडबैक ऑफ